Ignited Minds Tutorials has recently released a series of educational videos on the topic of polynomials for Class 10, CBSE, and Maharashtra State Board Mathematics. These videos cover important concepts such as types of polynomials, degree of polynomials, zeros of polynomials, and factorization of polynomials. The tutorials are designed to help students understand the fundamentals of polynomials and improve their problem-solving skills. Each video in this series provides a detailed explanation of the topic, along with examples and sample problems to practice. The content is presented in a clear and easy-to-understand manner, making it suitable for students of all learning levels. Whether you are studying for your board exams or simply looking to strengthen your understanding of polynomials, these videos can provide valuable support. Additionally, Ignited Minds Tutorials offers supplementary study materials, practice questions, and quizzes to further enhance the learning experience. With the convenience of online access, students can watch the videos at their own pace and revise the material as needed. By utilizing these resources, students can build a strong foundation in polynomials and feel more confident in their math abilities. Whether you're a visual learner or simply looking for extra guidance, these videos can be a valuable tool in your educational journey. Okay, बच्चा पार्टी, we will be doing polynomials पे अपन करेंगे भाई साहब PYQs. So ये एक ट्रेंड है देखो PYQs का, ठीक है. अगर आप देखोगे ये MCQ है, ये वेरी शॉर्ट आंसर्स है, शॉर्ट आंसर्स है, शॉर्ट आंसर 2 है, लॉन्ग आंसर्स है. टॉपिक्स देख लीजिए. 2.1 जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है जिस पे अपन करेंगे, ठीक है. 2.2 है जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल है, ठीक है. और 2.3 है जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आपको दिख रहे हैं जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल. ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब पैराबोला है कि हाइपरबोला है, कैसा है, ठीक है. ये ज्योमेट्रिकल मीनिंग है. और सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वो कहाँ से आते हैं, between relationship between zeros and coefficients of a polynomial, which is what alpha plus beta is equal to minus b by a, alpha beta is equal to c by a. इस पे questions बनते हैं, ठीक है. So let's quickly look at the questions people. We are dealing strictly with previous years CBSE के board के questions and we are not going very much back, ठीक है. 2021, 22, 23 ऐसे ही questions अपन उठाएंगे, ठीक है. Okay, चलिए पहला वाला question है देखो. If one of the zeros of the quadratic polynomial MCQ है k minus 1 to x square, k minus 1 to x square plus kx plus 1 is minus 3, then the value of k is, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी. चलिए 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 फटाफट. डन हो गया. वन ऑफ द जीरोज है देखो. अरे फटाफट सोचना है भाई साहब इतना. f x की वैल्यू क्या है बोलो. k माइनस 1 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1. वन ऑफ द जीरोज इज माइनस 3. मतलब यहाँ पे f माइनस 3 की वैल्यू क्या होगी, 0. डालो भाई साहब यहाँ पे k माइनस 1 इंटू 3 का माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k इंटू माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो दैट विल बी हाउ मच, 9 इंटू k माइनस 1 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो ये हो गया आपका 9k माइनस 9 माइनस 3k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है. माइनस 9 प्लस 1 कितना हो गया, माइनस 8, ठीक है. और 9k माइनस 3k कितना हो गया बोलो, 6k. तो आपका k 6k का वैल्यू कितना हो गया बोलो, 8. तो k का वैल्यू कितना हो गया बोलो, 8/6. 2 4 8, 2 3 6, 4/3 इज द करेक्ट ऑप्शन. समझ में आ रही है, ठीक है. ओके चलिए. द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल हैविंग जीरोज माइनस 3 एंड 4 ओनली इज. बहुत आसान सा सवाल है भाई साहब, इसमें कुछ करना भी नहीं है. वरत क्या होगा, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल. अरे भाई साहब आपने देखा कि अगर लीनियर इक्वेशन है, जहां पे लीनियर होता है वहां पे कितने जीरोज होते हैं, 1 जीरो होगा, है ना. जहां पे क्वाड्रेटिक है वहां पे मैक्सिमम कितने जीरोज होते हैं, 2. अभी भाई साहब आपको यहाँ पे 2 जीरोज दिख रहे हैं, 2 रूट्स दिख रहे हैं, तो ये क्वाड्रेटिक होगा. क्या ये समझ में आ रहा है, ठीक है. द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल कैन बी ओनली 2. डिग्री कितना हो जाएगा, 2. इट विल बी अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 2 जीरोज आते हैं भाई साहब, ठीक है. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ये 2 जीरोज हो गए. आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है. ओके ओके ओके
चलिए भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये थोड़ा सा टेढ़ा हो सकता है सवाल, ठीक है, इसमें थोड़े से टेढ़े सवाल आ सकते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग में, ठीक है। द ग्राफ y इज इक्वल टू पी एक्स इज गिवन फॉर पॉलिनोमियल पी एक्स, द नंबर्स ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल फ्रॉम द ग्राफ इज, चलिए बताइए 1 क्यों, एक जगह पे ही लाइन को टच हो रहा है, ये पॉइंट जो है तो ये ग्राफ एक जगह पे ही टच हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे कितना सोल्यूशन हो जाएगा भाई साहब 1, क्लियर है, ठीक है, ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब यहाँ पे सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विद जीरोस 5/3 एंड 0, चलिए फटाफट करना है वैसे इसको, फटाफट फटाफट क्विक क्विक क्विक। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है, with zeros 5/3 and 0, which of the following is a quadratic polynomial with zeros 5/3 and 0, कौन सा हो जाएगा बोलो। तो आपके यहाँ पे कितने सॉल्यूशंस हैं, 2, और इनमें से कौन सा हो जाएगा, देखो 5/3 कैसे बता सकते हो, सी, हाँ क्या क्या क्या, देखो 5/3 अगर आपने एक अल्फा लिया दैट इज 5/3 और एक आपने बीटा लिया दैट इज 0, है ना, तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू 5/3 प्लस 0 दैट इज हाउ मच 5/3, और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो 0, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0, ये होता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज 5/3 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अभी आपने भाई तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स इज इक्वल टू 0, ये हो गया आपका, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 एक्स कहाँ है, यहाँ पे एक्स नहीं है ना भाई साहब, तो यहाँ पे इसको अगर मैं, हाँ ये नहीं होगा, देखो 5/3 एक्स नहीं है, तो इसको अगर आपने मल्टीप्लाई किया किससे 3 से, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो 3x स्क्वायर माइनस 5x इज इक्वल टू 0, है ना, इसको कर लो, देखो ये कितना है 3x स्क्वायर माइनस ये हो गया 15x, ठीक है, यहाँ पे करो इसको, यार यहाँ पे तो कोई वाला भी नहीं बन रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, मेरा कुछ गलती हुआ क्या, माइनस अल्फा प्लस बीटा 5/3 एक्स, हाँ 3x स्क्वायर माइनस 5x, चलो इसको देखना पड़ेगा, शायद ऑप्शंस कुछ गलत हैं या कुछ, ओके चलिए, इफ अल्फा प्लस बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा कितना हो जाएगा, जल्दी 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 फटाफट करना है इसको, हट, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस, जीरोस मतलब रूट्स हैं, जीरो नहीं है वो, उसकी वैल्यू जीरो नहीं है, वन बाई अल्फा प्लस 1/बीटा, ये कितना हो जाएगा बोलो, दिस विल बी अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, है ना। अभी आपका भाई साहब यहाँ पे पी एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसको अगर अपन कंपेयर करते हैं किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, तो ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई 1 और सी की वैल्यू हो गई कितनी -1, ठीक है, सी की वैल्यू हो गई -1। बताइए मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा विल बी माइनस बी बाई ए, सो दैट इज हाउ मच -1/1, तो दैट इज -1। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, सी बाई ए, तो सी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है -1 और ए की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो गया आपका -1, ठीक है, क्लियर है, ओके। सो अभी हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसकी वैल्यू क्या होगी, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आई है बोलो -1 और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आई है -1, तो कितना आ गया इसका वैल्यू 1, ये आंसर हो जाएगा भाई साहब आपका 1, ठीक है। आर वी क्लियर, क्लियर ऑन दिस वन पीपल, हम समझ में आता हम, कोई कंफ्यूजन नहीं, ओके चलिए भाई साहब आगे बढ़ते हैं मुस्तैदी के साथ। अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल द व्हेन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, चलिए फटाफट फटाफट करना भाई साहब,
डन। अल्फा बीटा जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल क्या है भाई साहब, आपका पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा इज, तो आप भाई साहब यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर माइनस 0x माइनस 1, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं भाई साहब, ये पॉलिनोमियल हो गया 0x माइनस 1, जिसको अपन क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो मुझे बताओ यहाँ पे वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, कंपेयर करो, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, सिंपल, समझ में आ रहा है भाई साहब। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 0, इन दोनों को कंपेयर करो भाई साहब, ये आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन, ओके ओके ओके। ये था आपका भाई साहब 2023 का सवाल। 2023 का सवाल फिर से आपके मैदान में, चलिए भाई साहब फटाफट करना है। 2023 का सीबीएसई का सवाल है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू, क्या होगा, किसको मानना है, ओके भाई साहब, इफ अल्फा बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा। तो आपका यहाँ पे देखो पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, पी एक्स, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है भाई साहब, 4x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 7, ठीक है, क्लियर है, ओके। अगर हम इसको कंपेयर करें किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ए की वैल्यू हो गई 4, बी की वैल्यू हो गई माइनस 3 और सी की वैल्यू हो गई भाई साहब माइनस 7, ठीक है। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू माइनस 3 और सी की वैल्यू हो गई कितनी, माइनस 7, ठीक है, ओके। 1 तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस बी बाई ए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई माइनस बी बाई ए, दैट विल बी हाउ मच, माइनस माइनस 3 बाई 4, सो दैट विल बी 3 बाई 4। अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब, सी बाई ए, दैट विल बी हाउ मच, माइनस 7 बाई 4, ठीक है। अल्फा बीटा की वैल्यू हो गई इतनी, ठीक है, ओके। अभी अपने को क्या करना है भाई साहब, यहाँ पे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा करना है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, अल्फा बीटा, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 3 बाई 4, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई, माइनस 7 बाई 4, माइनस 3 बाई 7, ठीक है। तो ये हो गया आपका माइनस 3 बाई 7, माइनस 3 बाई 7, ठीक है, क्लियर है। क्या 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 बोलिए, मैप है किसका, ब्राजील का मैप है, उड़ी बाबा, सबको मैप है क्या ब्राजील का, उड़ी बाबा रे, ये क्या हुई, हे जगन्नाथ महाप्रभु। चलो इसको करना है भाई साहब, हो गया भाई साहब। अ कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पाथ इट ट्रेसेस इट गिवन बिलो, तो इसका पाथ है देखो, ट्रंग 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 चलता है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन अटेम्प्ट एनी 4 क्वेश्चंस, ठीक है। व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व, ये शेप क्या है भाई साहब, बंद है, अरे यार बंद कैसे हो गया यार, ठीक है। कार मूव्स ऑन अ हाईवे, द पाथ इट ट्रेसेस इज गिवन, अरे चाचू इधर है एक मिनट, चलो भाई साहब क्या होगा यहाँ पे, व्हाट इज द शेप ऑफ द कर्व EFG, क्या हो जाएगा ये, पैराबोला, ओके। सो दिस ग्राफ इज बेसिकली व्हाट, दिस ग्राफ इज पैराबोला, ठीक है। द कर्व इज रिप्रेजेंटेड बाय द पॉलिनोमियल देन इज जीरोस आर, भाई साहब ये क्या हो जाएगा जीरोस, बताइए इसका, तो यहाँ पे x, तो ये हो गया आपका x का स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 है, ये माइनस में है, इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 1 एंड x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, सो आइदर आपका x की वैल्यू क्या हो गई -1 और x की वैल्यू क्या हो गई -3, ठीक है। तो 1 -1 एंड -3, तो ये आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ये वाला, ठीक है। इफ द पाथ ट्रेस्ड बाय द कार्स हैज जीरोस -1 and 2 देन इट इज गिवन बाय,
ठीक है। अगर आपका जीरोस क्या है, -1 एंड 2 है, -1 है, देखो ये 2 है, -1 और 2 आपके जीरोस हैं। ये तो यहाँ पे बता दिया है, लेकिन अगर नहीं बताया होता तो आपको ये वैल्यूज लेनी पड़ती। जहाँ पे भी जीरो रहा है, देखो -3 एक जीरो है, -1 दिख रहा है भाई साहब यहाँ पे, इसीलिए देखो -1 और -3 एक जीरो आया है, ठीक है। यहाँ पे आपका क्या ले रहा है, -1 एंड 2, देखो यहाँ पे 2 और ये -1, इसको भी जीरो लिया जा रहा है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं। तो इसका भाई साहब देन इसका पैराबोला का पाथ क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे हो जाएगा। तो इसका मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई, बोलो। अल्फा की वैल्यू हो गई भाई साहब आपकी -1 और बीटा की वैल्यू कितनी हो गई बच्चा पार्टी, 2, ठीक है। तो अपने को x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा हुआ, एक नंबर। अच्छा मिल ही गया, पूरा मैप ही मिल गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। देखो भाई साहब एकदम इंटेलिजेंट इंसान है, थैंक यू सो मच सर। मैप पे लेके आ गया भाई साहब, देख रहे हो भाई साहब। ये सॉरी थोड़ा सा चलिए भाई साहब और यहाँ पे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा भाई साहब कितना हो जाएगा, -1 + 2 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, दैट इज -1 इंटू 2। तो ये हो गया x² माइनस, तो ये 2 - 1 हो गया आपका x -2, ठीक है। दिस इज इक्वल टू, तो ये हो गया x² - x -2, x² - x -2। द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल रिप्रेजेंटिंग द होल कर्व इज, बताइए इसी में जाना है। बहुत आसान भाई साहब। कितने नंबर ऑफ जीरोस हो गए, ये एक जीरो, ये एक जीरो, ये एक जीरो और ये एक जीरो, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1 2 3 4। वैल्यूज अगर लिखनी होगी आपको तो क्या क्या हो जाएंगे बताइए जीरोस। द जीरोस आर व्हाट, -3 -1 2 एंड 5, तो ये आपके 4 जीरोस हो गए, तो नंबर ऑफ जीरोस इज 4। समझ में आ रहा है। इस तरीके के सवाल आपके आ सकते हैं जो पर्टेनिंग टू फिगर्स हैं, ग्राफ्स पे इस तरीके के सवाल आ सकते हैं, बहुत चिंटू पिंटू सवाल आएंगे लेकिन, ठीक है। ओके चलिए भाई साहब, द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज, ओ इसी में चला आ रहा है भाई साहब, ओके चलो भाई साहब यहाँ पे जाते हैं। सी और जी में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लल्लू पंजू सवाल। 5 - -1 है मतलब 6 है ना। डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी इज 5 - -1, तो इधर हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन सी एंड जी, डिस्टेंस बिटवीन C and G is 5 - -1, that will be 5 + 1, that is equal to 6, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका भाई साहब 6 यूनिट्स। वाह, समझम। ओके, द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -1 and the product is 6 is, चलिए भाई साहब इजी सवाल है, इजी एकदम इजी। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros, तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल द सम ऑफ whose zeros is -5 एंड द प्रोडक्ट इज 6, तो कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा इज -5 एंड अल्फा बीटा इज इक्वल टू 6, कितना हो जाएगा बोलो। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे x² माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट इज -5 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा दैट इज 6, x² प्लस 5x प्लस 6,
ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। क्लियर है? ओके ओके ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है देखो ये। ओके, VSA में आते हैं वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। चलिए फटाफट करना है भाई साहब इसको। कल शायद हमने इस तरीके का एक सवाल किया था। हो गया? अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये आपका एफ एक्स है भाई साहब। एफ एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? देखो यहाँ पे अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा बीटा। ठीक है, क्लियर है? ओके, अब इसको अपन कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो आपका भाई साहब अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू कितना हो गया? माइनस बी बाई ए। ठीक है, तो यहाँ पे ए की वैल्यू कितनी है बोलो? 1। बी की वैल्यू कितनी है बोलो? -1। सी की वैल्यू कितनी है बोलो? -4। ए की वैल्यू हो गई 1, बी की वैल्यू हो गई -1, सी की वैल्यू हो गई -4। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, दैट इज -1 बाई ए, दैट इज़ 1। तो ये हो गया 1। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1। अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो सी बाई ए मतलब यहाँ पे कितना हो गया? सी की वैल्यू कितनी है बोलो? -4 और ए की वैल्यू 1, तो ये हो गया -4। ठीक है, इसको करना है भाई साहब अभी अपने को। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डालो, यहाँ पे कितनी हो गई? अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हो गई 1 और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई? -4 माइनस अल्फ़ा बीटा। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब? -4। तो ये हो गया कितना बोलो? -1/4 प्लस 4। तो ये हो गया आपका 4 - 1/4। सो दैट विल बी हाउ मच? 4, 16 - 1। तो यहाँ पे 1 बाई अल्फ़ा प्लस 1 बाई बीटा माइनस अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हो गई 15/4। ठीक है, इसकी वैल्यू हो गई भाई साहब 15/4। क्लियर है? समझ में आ रहा है ये? आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम बोल क्या 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 कौन सा है? बोल कौन सा? ये अल्फा बीटा? हाँ किया ना, -4 तो +4 हुआ ना। हाँ ना चाचू, तो इसको आगे कर दिया ना मैंने। -1/4 +4 है, तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं? 4 - 1/4 लिख सकते हैं। अरे इसको आगे किया मैंने, 4 - 1/4 लिख सकते हैं। तो 4 - 1/4 लिखा, तो 4 4 जा 16, 16 - 1 15/4। और कोई डाउट? ठीक है, आर वी क्लियर? चलिए दूसरा वाला के लिए 16 वाला। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो एक भी सवाल नहीं कर रहा है। इफ 1 0 ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस के, एक जीरो इनमें से क्या है भाई साहब? 2 है, मतलब अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है भाई साहब? 2। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो आपको यहाँ पे के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, के की वैल्यू क्या है भाई साहब? फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए फटाफट करना है इसको। डन डन। एक जीरो क्या है भाई साहब? आपका 2 है। सिंपल, आप भाई साहब देखो, अगर 1 0 2 है,
यहाँ पे आप देखो एफ एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 3x प्लस के। तो अगर अल्फा की वैल्यू 2 मतलब आपका 102 है तो f2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2 प्लस के, इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 0, है ना। तो यहाँ पे कितना हो गया 4 प्लस 6 प्लस के इज इक्वल टू 0, तो ये हो गया 10 प्लस के इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर के की वैल्यू कितनी हो गई, के की वैल्यू हो गई -10, के की वैल्यू हो गई भाई साहब -10। समझ में आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सो के की वैल्यू हो गई -10। क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम ओके ओके ओके। चलिए भाई साहब इसको करना है, फटाक से करना है, 2023 का सवाल है। चलिए 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 फटाक से। इफ 1 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, एक जीरो भाई साहब पॉलिनोमियल का क्या है 6, तो यहाँ पे आपका px है दैट इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 37x माइनस k माइनस 2। एक जीरो दूसरे जीरो का क्या है, रेसिप्रोकल है, ठीक है। 1 0 इज बेसिकली द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, मतलब आपका एक अल्फा है तो बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 बाई अल्फा, है ना, ठीक है, क्लियर है। इसको अपन कंपेयर करते हैं किसके साथ, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। a की वैल्यू कितनी हो गई 6, b की वैल्यू कितनी हो गई 37 और c की वैल्यू कितनी हो गई -k -2 है ये, ठीक है, -k -2, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, आपको देखो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या है 1 बाई अल्फा है, तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इंटू 1 बाई अल्फा, मतलब कितना हो गया 1, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या होती है c बाई ए, ठीक है, दिस इज इक्वल टू c बाई ए, और c की वैल्यू यहाँ पे कितनी है बोलो -k -2, और a की वैल्यू कितनी है 6, तो मतलब इसका मतलब ये 1 और ये बराबर हैं, ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू -k -2 और इधर हो गया आपका 6, 6 1 जा 6 -k -2, ठीक है। तो इधर कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे, दिस विल बी 6 इज इक्वल टू -k और ये माइनस माइनस कितना हो गया +2, तो ये हो गया -k 6 -2 दैट इज 4 इज इक्वल टू -k। सो k की वैल्यू कितनी हो गई, k की वैल्यू हो गई -4। आर वी क्लियर टू दिस वन, k की वैल्यू हो गई -4, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू हो गई -4। आर वी क्लियर, ठीक है। चलिए भाई साहब इसको करना फटाफट। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial। जो क्वेश्चन दिया हुआ है देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक 2020 का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। तो एफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। वेरी सिंपली अगर इसका रूट्स क्या है, लेट्स से रूट्स अगर हमने मान लिया, लेट्स से यहाँ पे रूट्स क्या है अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा -b/a, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब c/a, ठीक है। अभी हमको दूसरा कुछ ऐसा लेट, ठीक है, लेट अल्फा डैश एंड बीटा डैश बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल जो आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। रूट्स या जीरोस बोल सकते हैं, रूट्स या जीरोस। तो अल्फा डैश की वैल्यू क्या है 1 बाई अल्फा है, और बीटा डैश की वैल्यू क्या है भाई साहब 1 बाई बीटा है। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो
1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, दैट विल बी हाउ मच, ये हो गया अल्फा बीटा और इधर हो गया अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर चुके हैं, कितना है सी बाई ए और ए कैंसिल हो गया, तो ये आ गया आपका माइनस बी बाई सी। तो अल्फा डैश प्लस बीटा डैश की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी बाई सी। ठीक है, ये हो गया आपका इक्वेशन 3। अभी हम बात कर रहे हैं अल्फा डैश इंटू बीटा डैश की, मतलब क्या हो जाएगा 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा, सो दैट विल बी 1 बाई अल्फा बीटा। अल्फा बीटा मतलब 1 बाई सी बाई ए, सो दैट विल बी ए बाई सी। ठीक है, क्लियर है। तो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, ये हो गया आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ओके, तो यहाँ पे कितना हो गया भाई साहब, दिस विल बी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा डैश प्लस बीटा डैश, और ये हो गया अल्फा डैश बीटा डैश। अल्फा डैश प्लस बीटा डैश मतलब कितना हो जाएगा, माइनस माइनस बी बाई सी इंटू एक्स प्लस अल्फा डैश बीटा डैश। अल्फा डैश इंटू बीटा डैश भाई साहब कितना हो जाएगा, ए बाई सी। ठीक है, प्लस ए बाई सी। ठीक है, तो आपको भाई साहब इसको अगर जीरो पुट अप कर दे अपन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, सी एक्स स्क्वायर, इसको अपन ने मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, सी के साथ, तो सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल टू 0। तो आपका पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, दिस विल बी योर पॉलिनोमियल, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए। क्या ये समझ में आ रहा है बच्चा बाड़ी, आर वी क्लियर ऑन दिस वन। ओके, अभी हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे विच आर बेसिकली आपके सीबीएसई में, सीबीएसई के सैंपल पेपर्स के क्वेश्चंस हैं ये, सीबीएसई सैंपल क्वेश्चंस हैं, सीबीएसई अपने साइट पे इन क्वेश्चंस को अपलोड करती है पर चैप्टर। ठीक है, ओके, चलिए भाई साहब यहाँ पे दिया हुआ है आपको, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है, एफ एक्स एंड अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा प्लस अल्फा बीटा, देन पी इज इक्वल टू व्हाट। तो आपको देखो यहाँ पे पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, एफ एक्स की वैल्यू क्या दी हुई है बच्चा बाड़ी, पी एक्स का स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3p दिया हुआ है। ठीक है, इसको अपन पहले क्या करेंगे, इसको अपन कंपेयर करेंगे किसके साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, विच गिव्स यू द वैल्यू ऑफ ए टू बी p, which gives you the value of b to be -2 and which gives you the value of c to be 3। ठीक है, ओके, अल्फा बीटा जीरोस हैं, तो अपन यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस बी बाई ए, सो दैट विल गिव यू हाउ मच, माइनस बी हो गया आपका माइनस 2 बाई पी, सो दैट विल बी 2 बाई पी, ये हो गया माइनस बी बाई ए। ओके, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, सी बाई ए, सी बाई ए मतलब 3 बाई पी। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा दिया हुआ है आपको, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2 बाई पी, यार यहाँ पे गड़बड़ हो रहा है, अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। अच्छा, यहाँ पे सी की वैल्यू 3p है, आई एम सो सॉरी, सी की वैल्यू भाई साहब 3p होगी। ठीक है, तो सी बाई ए मतलब 3p बाई p है ना, सो ये हो जाएगा आपका 3। ओके, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे भाई साहब अल्फा बीटा की वैल्यू अल्फा बीटा के बराबर, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, 2 बाई पी, अल्फा प्लस बीटा इज 2 बाई पी, दिस विल बी इक्वल टू अल्फा बीटा देयर इज 3, तो यहाँ पे हो गया 2 बाई 3 इज इक्वल टू पी, तो पी की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 2 बाई 3। ठीक है, सो पी की वैल्यू हो गई भाई साहब 2 बाई 3। आर वी क्लियर। ठीक है, ओके ओके ओके, if 2 and half are the zeros of the polynomial, तो बताइए क्या हो जाएगा भाई साहब, फटाफट, क्विक attempt it। ओए if 2 and 1/2 are zeros of this, ठीक है, तो आपके भाई साहब 2 and 1/2 are zeros of, तो आपका यहां पे देखो px दिया हुआ है, कितना है, px स्क्वायर प्लस 5x प्लस r है। ठीक है, यहाँ पे 2 and 1/2 are zeros,
तो आपको यहाँ पे क्या बोल सकते हैं भाई साहब, इसका 2 जीरो है, अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, माइनस बी बाई ए। ठीक है, इसको अगर हम कंपेयर करते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के साथ, ए की वैल्यू हो गई पी, बी की वैल्यू हो गई 5 और सी की वैल्यू हो गई भाई साहब आर, सी की वैल्यू हो गई आर। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी मतलब -5 बाई ए, दैट इज -5 बाई पी। ठीक है, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, अल्फा बीटा की वैल्यू हो जाएगी सी बाई ए मतलब दिस विल बी आर बाई पी, है ना, सी मतलब यहाँ पे आर है। ठीक है, आर बाई पी। ओके, और यार यहाँ पे सब गड़बड़ क्यों हो रहा है, अल्फा और बीटा, तो मतलब अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं बोलो, 2 प्लस 1/2, क्योंकि अल्फा की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2 है और बीटा की वैल्यू क्या है 1/2, तो 2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू -5 बाई पी। ये कितना हो जाएगा बोलो, 2 2 4 5/2 इज इक्वल टू -5 बाई पी। ठीक है, 5 1 5, यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई साहब, p इज इक्वल टू यहाँ पे -1 इंटू 2, तो p की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, -2। यहाँ पे एक ही जगह पे -2 है, अच्छा यहाँ पे दूसरे में भी है, r भी है, चलिए इसको 2 में भी निकालना पड़ेगा। ओके, अल्फा बीटा, अभी भाई साहब अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है, r बाई पी, अल्फा की वैल्यू कितनी 2 और बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 इज इक्वल टू r p की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, कितना है -2, है ना, -2, तो ये हो गया आपका 1, तो 1 इज इक्वल टू -r/2, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2, ये हो गया -r, तो देयरफॉर r की वैल्यू क्या हो जाएगी -2, r की वैल्यू क्या हो गई -2, p की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब -2 और r की वैल्यू भी कितनी हो गई भाई साहब -2, तो p एंड r बोथ आर इक्वल टू -2। आर वी गेटिंग दिस पीपल हम? ठीक है, ओके ओके ओके। Okay, this figure given alongside shows the path of a diver. ठीक है, this is basically a diver when she takes a jump from the diving board. तो diving board से jump कर रही है ये, clearly it's a parabola. ठीक है, एक parabola है। Annie was standing on a diving board 48 feet above the water level. ठीक है, she took a dive into the pool. Her height in feet above the water level at any time t in seconds is given by the polynomial. ये भाई साहब height है। ठीक है, this is given by the polynomial -16t²। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या है बोलो, p t की वैल्यू, दिस इज इक्वल टू -16t का स्क्वायर प्लस 8t प्लस k। ठीक है, ये हो गया इसका एट एनी पॉइंट, ये पैराबोलिक पाथ है, देखो ये ऐसे ये, ठीक है, ये पैराबोलिक पाथ है। बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन अटेम्प्ट एनी 4 of 5 सब पार्ट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलिए भाई साहब, हाँ कितना, क्यों, देखो इस पूरे इक्वेशन, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाओ यहां पे, इस पूरे इक्वेशन में तुम्हारा वेरिएबल पार्ट कौन सा है t, लेकिन इसके पूरे पाथ में, ठीक है, इसके पूरे पाथ में एनी वाज स्टैंडिंग ऑन अ डाइविंग बोर्ड 48 फीट अबव द वाटर लेवल, वाटर लेवल के हमेशा एनी कितने ऊपर रहेगी 48 फीट, ये तो कांस्टेंट है ना भाई साहब, ये तो चेंज नहीं होगा, और k आपका एक कांस्टेंट है, इसीलिए k की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48। ठीक है, इस चीज में बाकी सब वेरी कर रहे हैं लेकिन k वेरी नहीं करेगा, क्या ये समझ में आ रहा है? तो k की वैल्यू होगी भाई साहब क्या 48 या -48, बोलो बोलो ऊपर, ओके, तो आपका भाई साहब 48 हो जाएगा। एट व्हाट टाइम विल शी टच द वाटर इन द पूल, कितने टाइम पे वो वाटर पे टच करेगी, पूल पे, बताओ भाई साहब बताओ, अरे बोलो ना जल्दी से बोलो, जब वाटर को टच करेगी वो, ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, शी टुक अ डाइव इनटू द पूल, हर हाइट अबव द वाटर, तो हाइट अबव, जब वो टच कर रही है तो हाइट कितना हो गया 0 हो गया, तो अपन क्या लिख सकते हैं -16t² प्लस 8t प्लस k इज इक्वल टू 0। k की वैल्यू यहाँ पे कितनी है भाई साहब, ऑब्वियसली 48 है ना, 48 कितने टाइम पे ये होगा, एट व्हाट टाइम, अब इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो ये कितना हो जाएगा बोलो, इसको आप पहले डिवाइड कर दो भाई साहब, किससे डिवाइड कर दो 8 से, सबसे जाएगा ना 8 6 48, चलिए
ये हो गया, -8 से डिवाइड कर देते हैं, तो 8 2t स्क्वायर माइनस t प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 2 12, 4 और 3 का कॉम्बिनेशन बैठता है यहाँ पे, प्लस नहीं होगा, यहाँ पे होगा माइनस, है ना। ये हो गया आपका -8 से डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये हो गया 2t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 3t माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपका 2t t माइनस 2 प्लस 3 इंटू टी माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो गया आपका t माइनस 2 इंटू 2t प्लस 3 इज इक्वल टू 0। सो either t minus 2 is equal to 0 or 2t plus 3 is equal to 0, which gives you, therefore t is equal to 2 or 2t is equal to minus 3। तो t is equal to 2 और t is equal to minus 3 by 2। अभी टाइम आपका नेगेटिव नहीं हो सकता है, तो इसको अपन ने डिसरिगार्ड कर दिया, ये आपका हो जाएगा t is equal to 2 सेकेंड्स इज द आंसर, ठीक है। तो 2 सेकेंड में वो टच करेगा, ठीक है। Rita's height in feet above the water level is given by another polynomial with zeros -1 and 2. Then pt is given by, भाई साहब pt का वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, जो जंपिंग हाइट है वो तो 48 ही रहेगा, है ना, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे हमारा कांस्टेंट का वैल्यू अपने को मालूम है, तो कांस्टेंट की वैल्यू अपने को मालूम है भाई साहब, k की वैल्यू कितनी है 48 है। मतलब हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, तो हमारा पॉलिनोमियल चाहिए ना, यहाँ पे पॉलिनोमियल विल बी ax स्क्वायर, या अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई साहब, pt विद जीरोस -1 and 2, तो x माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं भाई साहब क्या, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जीरोस क्या है -2 + 1, तो -1 + 2 इंटू एक्स प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा भाई साहब, एक्स स्क्वायर 2, ये हो गया 2 - 1 हो गया 1, तो ये हो गया -x, और यहाँ पे हो गया -2 एक्स स्क्वायर कैसे ये वाला, हाँ टी स्क्वायर कहाँ हो रहा है, लेकिन हाँ मतलब टी होगा, लेकिन अल्फा और बीटा तुम्हारा कितना है 2 और -1 ना, तो -1 + 2, तो ये हो गया माइनस टी। देखना पड़ेगा इसका सोल्यूशन यार। ओके, यहां पे देखो क्या पूछा गया है, ठीक है, तुम नीचे आओ, बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। ये तो हो गया भाई साहब, ये वाला हो गया, रीटा's हाइट इन फीट अबव द वाटर लेवल इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल, ठीक है, एक और पॉलिनोमियल। तो हम यहाँ पे भाई साहब 5th वाला सवाल कर रहे हैं, ठीक है, इट इज गिवन बाय अनदर पॉलिनोमियल। सो लेट्स से आपका दूसरा पॉलिनोमियल दिया हुआ है विद जीरोस, अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 और बीटा की वैल्यू। तो देखो जब भी कोई पॉलिनोमियल होता है तो दिस पॉलिनोमियल इज गिवन बाय व्हाट, ये पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, पॉलिनोमियल की वैल्यू यहाँ पे लेट्स से k इज अ कांस्टेंट, एक k कांस्टेंट है, k इज अ कांस्टेंट टू एक t -1 एंड t -2, है ना, यही जीरोस हो जाएंगे ना भाई साहब, t -1 एंड t -2, ये हो जाएगा आपका पॉलिनोमियल। ओके, यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, k इंटू टी प्लस 1 इंटू टी -2, क्या ये समझ में आ रहा है। अभी व्हेन शी इज जंपिंग, ठीक है, तो टाइम t की वैल्यू कितनी 0 है एट स्टार्ट,
टाइम टी की वैल्यू कितनी है भाई साहब 0 है, और हाइट कितना है, हाइट ऑब्वियसली ये वाला हाइट कितना है 48 है, 48 है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, पुटिंग द वैल्यूज हियर, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, के एट स्टार्ट एट टी इज इक्वल टू 0, हाइट इज इक्वल टू 48। तो अपन क्या लिख सकते हैं, के इंटू टी प्लस 1 दैट इज 0 प्लस 1 इंटू 0 माइनस 2, 0 माइनस 2 इज इक्वल टू भाई साहब कितना हो गया 48। ठीक है, तो यहाँ पे अपन के इधर हो गया 1 और ये हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू 48। तो माइनस 2 के इज इक्वल टू माइनस 2 के इज इक्वल टू 48। सो देयरफॉर के की वैल्यू क्या हो जाएगी 48 बाई माइनस 2 दैट इज माइनस 24, के की वैल्यू हो गई। तो पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा बोलो, के, तो देयरफॉर रीटास मूवमेंट इन पॉलिनोमियल इज गिवन बाय, तो ये पी टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो, के दैट इज माइनस 24 इंटू टी प्लस 1 इंटू टी माइनस 2। ठीक है, अब इसको भाई साहब कर लो, यहाँ पे आपका दिस विल बी हाउ मच, दिस विल बी माइनस 24 इंटू यहाँ पे हो गया आपका टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2 इंटू टी प्लस 1 इंटू माइनस 2। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच माइनस 24, ये हो गया आपका टी स्क्वायर 1 माइनस 2, तो ये हो गया माइनस टी माइनस 2। ठीक है, सो दैट विल बी हाउ मच माइनस 24 टी का स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48, माइनस 24 टी का स्क्वायर प्लस 24 टी प्लस 48, ये हो जाएगा। ठीक है, ओके, अ पॉलिनोमियल क्यू टी विथ सम zeros and 1 and product is modeling Anu's height in feet above the water at any time, then QT is given by, अगेन वही करना पड़ेगा देखो आपका। ठीक है, अभी अपन मान लेंगे भाई साहब यहाँ पे पॉलिनोमियल, इसका जीरोस क्या दिया हुआ है आपको, तो लेट्स से आपका ये वाला सवाल हो गया, 6th वाला सवाल है ना, तो यहाँ पे जीरोस क्या दिए हुए 1 और माइनस 6। तो लेट द पॉलिनोमियल, ठीक है, बी कितना के आपका भाई साहब क्या हो जाएगा, एक होगा x माइनस 1 और दूसरा होगा x माइनस माइनस 6, तो के एक्स सॉरी टी 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 टी, सो दिस विल बी बेसिकली के इंटू ये हो जाएगा आपका देखो t माइनस 1 और ये हो गया आपका t माइनस माइनस 6। ठीक है, सो दैट विल बी के इंटू टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 6। ठीक है, ओके, अभी यहां पे अपने को क्या करना है, देखो एट टाइम t इज इक्वल टू 0 h की वैल्यू कितनी है हमको मालूम है 48 है ना, 48 है। तो यहां पे पुटिंग t इज इक्वल टू 0 इन k इंटू 0 माइनस 1 0 प्लस 6 इज इक्वल टू कितना भाई साहब 48। ठीक है, तो यहां पे कितना हो गया k माइनस 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 48, तो माइनस के इज इक्वल टू 48 बाई 6, के की वैल्यू कितनी हो गई 6 8 माइनस 8, के की वैल्यू कितनी हो गई आपकी माइनस 8। आर बी क्लियर? ठीक है, ओके, तो अभी अपने को भाई साहब ये इक्वेशन निकालना है। सो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर द पॉलिनोमियल इज के इंटू भाई साहब टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 6, के की वैल्यू कितनी है भाई साहब माइनस 8। ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपलम माइनस 8 टी माइनस 1 इंटू टी प्लस 6, सो दैट विल बी माइनस 8, ये कितना हो जाएगा बोलो टी स्क्वायर माइनस यहाँ पे आपका सॉरी प्लस ये हो गया आपका माइनस 1 प्लस 6 इंटू टी प्लस यहाँ पे हो गया आपका माइनस 1 इंटू 6। ठीक है, सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच हम पीपलम, दैट विल बी माइनस 8 टी का स्क्वायर 6 माइनस 1 दैट इज 5 प्लस 5 टी माइनस 6। ठीक है, तो इसको अगर अपन करते हैं तो ये हो जाएगा आपका माइनस 8 टी का स्क्वायर, 8 5 आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, यहाँ पे भाई साहब क्यों ऐसा हो गया, 8 6 48, तो ये हो गया आपका प्लस 48
नहीं यार, ये तो भाई साहब सही है, 8 - 5 -40t प्लस 48 ही होगा ये तो। ओके चलिए देखते हैं भाई साहब आपका। ये वाला सवाल कीजिए जरा, 7th वाला। -12t का स्क्वायर प्लस k - 3 इंटू टी प्लस 48, ठीक है। जीरोज ऑफ द पॉलियम, मतलब इसका एक जीरो अल्फा है अगर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, माइनस अल्फा, है ना। तो अगर हम इसको करते हैं तो इसको अपन कंपेयर करेंगे किसके साथ बोलो, a t का स्क्वायर प्लस b t प्लस c, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना। यहाँ पे आपका अल्फा प्लस बीटा, बोलो मेरे को अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी होगी, दिस विल बी इक्वल टू माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। यहाँ पे a की वैल्यू कितनी आई है, -12, b की वैल्यू कितनी आई है बोलो, k - 3, और c की वैल्यू कितनी आई है, 48। तो माइनस बी मतलब माइनस k - 3 बाई ए, दैट इज -12। ये भाई साहब कैंसिल हो गया, तो दिस विल बी k - 3 बाई 12। अभी यहाँ पे देखो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा प्लस माइनस अल्फा, तो ये तो जीरो हो जाएगा, है ना। 0 इज इक्वल टू k - 3 बाई 12, तो आपका भाई साहब k - 3 इज इक्वल टू 12 इंटू 0 विच इज 0। सो देयरफॉर k की वैल्यू कितनी हो गई बोलो, 3। k की वैल्यू हो गई भाई साहब 3, देन k की वैल्यू इज 3। क्लियर हम पीपल, आर वी क्लियर? ओके आप लोगों का वर्कशीट लाए? हाँ काम कीजिए, कल मुझे सबको चाहिए, ठीक है, सबका मेरे को सबमिट चाहिए यहाँ पे, अभी एक साथ सबमिट कीजिए, कल पिन खत्म हो गया।